السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسد پاکستان کے ساتھ ملتان اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سرسد پاکستان میں ہم زراعت پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ زراعت کے مختلف پہلوؤں پر بڑی باریک بینی سے ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمارے دور دراز میں بیٹھے ہوئے جو کسان ہیں وہ بھی اس سے جو ہمارے ماہرین کی گفتگو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زراعت کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کو بہت سارے کسان ابھی جس سے ناواقف ہیں۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ چارہ جات کا کیا فائدہ ہے، چارہ جات سے ہم کس طرح منافع حاصل کر سکتے ہیں اور چارہ جات کاشت کرنے کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے جو بنجر رقبے پڑے ہیں جہاں ہم مختلف قسم کے جو ہے چارہ جات کاشت کر کے اپنے رقبوں کو قابل کاشت بنا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم گوارا پر بات کریں گے، گوارا کی کیا اہمیت ہے، گوارا کن کن چیزوں میں کام آ سکتا ہے اور اس سے ہم کیسے اپنی مارکیٹنگ گھر کے بہترین ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں اس کو، اسی پر گفتگو کریں گے۔ آج کے جو میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر لال حسین اختر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھاولپور، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مقرب علی صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں زرعی یونیورسٹی ملتان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں آفتاب عالم صاحب، آپ ترقی پسند کاشتکار ہیں اور آپ کا تعلق منکیرا سے ہے، ڈسٹرکٹ بکر سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اس پر۔ چارہ جات بہت ساری ایسی اقسام بھی ہیں جس سے بنجر رقبوں کو ہم آباد کر سکتے ہیں، قابل کاشت بنا سکتے ہیں۔ کون کون سی ایسی اقسام ہیں اور ان کا طریقہ کاشت کیا ہے اور کون سے آسان طریقے ہیں تاکہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں جن کے رقبے ابھی قابل کاشت ہیں لیکن وہ اس طرف جا نہیں رہے کیونکہ آباد کرنے میں ایک بڑا وقت درکار ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ آپ کے ٹاپک پر جانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے ادارے کا تعارف کرا دوں۔ پاکستان میں بلکہ پنجاب میں جو چارہ جات پر ریسرچ ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے جسے فوڈر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا مین ہب ہے جہاں جتنی بھی ہماری چارہ جات کی فصلیں ہیں ان پر ریسرچ ہوتی ہے اور ایک طویل لسٹ ہے جو ہم نے ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو پائپ لائن میں ہیں انشاءاللہ ان سالوں میں، اور وہ جو ہماری لوکل ریسرچ ہے، لوکل ریسرچ ہے، ہم خود اس کی بریڈنگ کرتے ہیں، اس کی ساری ایویلیویشن کر کے ہم لوکلی یہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو اس فوڈر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے 3 ذیلی ادارے بھی ہیں، ایک فاروق آباد میں ہے شیخو پورہ کے پاس، جہاں جتنی ہم ورائٹی ڈیولپ کرتے ہیں ان کا سیڈ ملٹیپلائی وہاں ہوتا ہے شیخو پورہ میں، وہ اسپیشلی سیڈ پروڈکشن جو آپ کا فارم ہے اپنا، بہت بڑا فارم ہے، جتنی ورائٹیز ہیں ان کا سیڈ ملٹیپلائی وہاں ہوتا ہے، کیونکہ باقی جو ہمارے 3-4 ادارے ہیں ان کی اتنی زیادہ زمین نہیں ہے کہ وہاں سیڈ ملٹیپلائی کر کے فارمر کو دیا جا سکے۔ دوسرا ادارہ ہمارا فیصل آباد میں ہے، فوڈر ریسرچ سب اسٹیشن فیصل آباد، جہاں زیادہ تر سورگم پر کام ہوتا ہے، جوار پر، چری بھی جسے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب انہوں نے لوسن، برسیم اور جنتر پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ابھی ان کی ایک جنتر کی ورائٹی منظور ہونے والی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سورگم کی ایک ورائٹی 2011 کے نام سے وہ آلریڈی ان کی اپرووڈ ہے۔ اسی طرح فیصل آباد میں ایک اور ہمارا ادارہ ہے جو لائیو اسٹاک سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرتا ہے، وہاں اگرانومسٹ فورسٹ پروڈکشن کے نام سے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چوتھا ادارہ جو میرا ہے یہاں بہاولپور میں، جسے گوہر ریسرچ اسٹیشن اور قیام میں کہتے ہیں، ویسے وہ ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن کے نام سے ہے۔ تو یہاں ہمارا مینڈیٹ گوارے کی ورائٹیز، نئی ورائٹیز ڈیولپ کرنا، اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا، اور ساتھ ساتھ لوسن، برسیم، اوٹس اور جو ہماری خریف کی کراپس ہیں، جوار ہے، گوارا ہے، ان کی سیڈ ملٹیپلیکیشن بھی ہمارے ذمہ ہے۔ خاص طور پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لوسن کا سیڈ، الفالفا جسے کہتے ہیں۔ الفالفا کا سیڈ باقی ہمارے جتنے بھی سرگودا ہے یا فیصل آباد ہے یا فاروق آباد ہے
वहाँ उसकी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है उसके लिए। ठीक है, ये आप बहावलपुर का जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, उसको सूट करता है। तो यहाँ ज्यादा सीड जो पंजाब का लूसन का वो हम प्रोड्यूस करते हैं। लूसन का भी और गवार का भी, सोरगम का भी, बरसीम भी, ओट्स भी। अच्छा, ये 5 फसलों का बीज हमारे पास होता है। ये जो आपका रिसर्च और है भावलपुर जी, और ये प्री बेसिक सीड होता है। ठीक है। जो हमारा फेडरल इदारा है FSCRD, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, उनसे ये तस्दीक शुदा, टैग शुदा होता है। ठीक है। तो हमें ये फख्र है कि हम पूरे पंजाब को, बल्कि सिंध तक के फार्मर्स को हम लूसन का सीड ओट्स करते, जहाँ से डिमांड आ जाए उनको, बल्कि इसके साथ साथ हम पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को भी देते हैं ताकि वो इसका बेसिक सीड बना के। ये तो आपके इदारे का बड़ा तफसीली आपने तारफ करवा दिया। मेरा आपसे सवाल फिर वही है कि जो बंजर रकबे हैं, हाँ, उनमें कौन कौन से चारा जात जो आसानी से हमारा किसान काश्त करे और अपने रकबों को काबिल काश्त बनाए? जैसे आपने जिक्र फरमाया चोलिस्तान का, क्योंकि चोलिस्तान बहुत वास्ट, तकरीबन कोई 66 लाख एकड़ रकबा पड़ा हुआ है, और उसमें प्रॉब्लम उसके ना आबाद होने का ये है कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी ब्रैकिश है, वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। वो अगर टोटल जो है चोलिस्तान का रकबा कितना? 66 लाख एकड़। 66 लाख बहुत बड़ा रकबा है जो बहराबाद पड़ा है। अगर ये इसमें आधा भी हम कर जाते हैं, ये किसी जमाने में अगर तारीख में जाए तो ये आबाद हुआ करता था जब दरियाए हाकरा इसमें से गुजरता था। तब ये आबाद था, तब आबाद था। लेकिन वो जब दरिया बंद हो गया तो फिर सारी सिविलाइजेशन डिस्टर्ब हो गई, और अब तो सिर्फ लोगों का वो बारिश पर गुजारा होता है। लेकिन उस समय मैंने देखा सर कि काफी सारे लोगों ने ये एक रोड ग्रास के नाम से एक चारा है जी, जिसका बड़ा बिजनेस, बहुत बिजनेस है, वो उन्होंने मुरब्बों के हिसाब से लगाया हुआ है, और वो पेरिनियल है, यानी बारिश पर फिर होता है, नहीं पानी लगाना पड़ता है। पानी, देखिए जो ये तस्वुर है ना जी, बगैर पानी की कोई चीज हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं, जिस तरह बरान इलाके हैं और लेकिन वहाँ भी बारिशें होती हैं तो फसल हो जाती है, बारिश नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं होता, फिर बाल का सीड भी ज़ाया हो जाता है। जैसे हमारा थाल का इलाका है, भाई आफ्ताब साहब बेहतर जानते हैं, मैं भी इस दफा विजिट करके आया हूँ कि लोगों ने चने काश्त किए, बारिश नहीं हुई तो उनका बीज भी ज़ाया हो गया, वो भी रिटर्न नहीं होगा। तो इसलिए बीज, पानी की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। लेकिन ये जो रोड ग्रास है ये बहुत प्रोडक्टिव है, हर 30-40 दिन के बाद उसकी कटिंग आ जाती है, और पेरिनियल है, आप एक दफा सो करें कई साल तक वो चलता है, बार बार काश्त करना भी नहीं पड़ता, और उसको काट के वो सुखाते हैं, बेल्स बना के मिडल ईस्ट और दूसरी हमारे यहाँ लोकल बड़ी कंजम्पशन है उसकी, जो हमारी डेयरी फार्म्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो उसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो लूसन है वो लगाया हुआ है, एल्फाल्फा जिसको कहते हैं, ये बहुत न्यूट्रिटिव है, 22-23% प्रोटीन है इसके चारे में ना। इसको क्या करते हैं कि वो काट के 2-3 दिन उसको खुश्क करते हैं, और फिर उसकी 20 किलो 15 किलो 25 किलो उसकी बेल्स बनाते हैं, जैसे कपास की गांठें देखी होंगी इस तरह की। ज़्यादा है आप समझते हैं? बहुत है सर, वो तो स्टोर करें और साल तक खिलाते हैं, वो खराब भी नहीं होता, और न्यूट्रिटिव बहुत है। साइलेज है, साइलेज इसको हे कहते हैं। अच्छा, ये जो खुश्क करके होता है वो हे होता है, और जो सब्ज फार्म में उसको वो साइलेज है। अच्छा डॉक्टर मुकर्रम साहब, आप गरज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप क्योंकि इनका इदारा इन्होंने अपने बड़ा तफसीली तारफ़ भी करवा दिया और जिन जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो भी बता दिया, आप किस पर काम कर रहे हैं? जैसे हम जानते हैं कि जी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे GDP में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 55.9% जो शेयर है वो लाइफ स्टॉक है, और लाइफ स्टॉक के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो टोटल हमारे पास अजनात काश्त हो रही है, जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है, उसमें 13% एरिया ऐसा है जिस पे जो है हमारे जो फॉडल्स हैं, चारा जात वो काश्त हो रहे हैं। और इन 13% एरिया को अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनली पूरी दुनिया के साथ, तो जो गोश्त और जो दूध की पैदावार है उसका जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो तकरीबन जो है वो
65% जो है ना जिसे जो है इसको सही तरह यूटिलाइज कर रहे हैं और इससे जो गोश्त और दूध की पैदावार ले रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान में अपना कंपैरिजन करें इस लिहाज से तो पाकिस्तान में जो है वो 36% जो है हम अभी जो है जो हमारे फॉडर्स हैं और जो लाइफ स्टॉक है उससे हम पोटेंशियल को जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ इसकी रीजन हैं जिसकी वजह से जो है वो हम पीछे हैं। उसी पे यूनिवर्सिटी बड़ा फर्क है, इस पे काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, उस पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान ने काम किया और इस पर हमारी 2-3 इनिशिएटिव थे हमारी यूनिवर्सिटी के। पहला तो इसके अंदर ये था कि जी हमने पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं जो फॉडर्स हैं इनके सीड प्रोडक्शन। तो हम सब देखते हैं कि एक बड़ा मसला फॉडर्स जो है उसके अंदर जो फार्मर्स का जो ग़िज़ाई ज़रूरियात जानवरों की पूरी नहीं हो रही या उनसे पोटेंशियल नहीं ले पा रहे, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का सीड अगर है तो बहुत कम है, उसकी मास जो है वो लेवल पे फार्मर्स तक अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उसमें हम 4 साल से इन्हीं ऑर्डर्स के ऊपर मौसमी जो है इसमें रबी और खरीफ के चाराजात इनका हम जो है प्री बेसिक और बेसिक सीड जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो जो है हम जो है वो जर्नल ग्रोथ को यहाँ से जो है अवेलेबल होता है। और इसके साथ हमने जो नेग्लेक्टेड क्रॉप्स हैं हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर जिसमें ग्वार बीन जिसमें अहम है उस पर भी हमने एक प्रोजेक्ट लिया और उसमें हायर एजुकेशन कमीशन का एक नेशनल प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च के लिए। तो उसमें 3 साल हमने काम किया ग्वारबीन पे, जिसमें हमने ग्वारे को एज ए सब्जी, ग्वारे को एज ए पाउडर, ग्वारे को एज ए ग्वारबीन जिसके जो है एज ए ग्रेन के तौर पर, फिर हमने इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उस पर हमने काम किया। देन हमने इसके मार्केट कंस्ट्रेंट्स को भी फोकस किया कि कहाँ कहाँ पे इसकी मेन मार्केट्स हैं और इंडस्ट्री के साथ क्या गैप है जिसकी वजह से जो है एक ऐसी क्रॉप जैसे कि ग्वारबीन का मैं काम कर रहा हूँ कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर इसकी 20% शेयर है इसका वर्ल्ड में, इंडिया का 75% शेयर और पाकिस्तान का 20% शेयर है। बट हम जो है इसमें जी क्योंकि ये क्रॉप नेग्लेक्टेड एरियाज में, ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी की कमी है, थल के एरियाज आसानी से हो जाता है। जी बिल्कुल, तो उसमें यही है कि हमने इसको इस पे वर्क किया कि किसी तरह फी एकड़ पैदावार फार्मर्स की इससे बढ़ाई जाए और क्या क्या उसके लिए इनिशिएटिव हैं और टेक्नोलॉजी को हमने इम्प्रूव किया। और हमने कोलैबोरेशन हमारा रहा ग्वार रिसर्च स्टेशन जो है भावलपुर डॉक्टर लाल साहब के साथ, और अब इसी के लिए हमने जो है डिफरेंट वर्कशॉप्स भी की और अभी भी इंशाल्लाह जो है ये 1 साल हमारा है इसमें हम जो है वो फार्मर्स के लिए वेबिनार और साथ में डिफरेंट ग्वार के एरियाज में जहाँ पे फार्मर ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे हम जो है उनके लिए जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद करने। अच्छा डॉक्टर, ये ग्वार बीन पे आपका बड़ा अच्छा काम बता रहे हैं आप, तो ये जहाँ बंजर रकबे पड़े हैं तो इस पे आप समझते हैं कि ये बेहतरीन है करने के लिए? जी सर, इसकी जो ग्वार की खूबी है ये है कि ये ऐसे रकबे जहाँ पे नमकियात ज्यादा हैं, ऐसे रकबे जहाँ पे जो है जमीन का जरखीजी लेवल कम है वहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन देता है और पानी की बहुत थोड़ी जरूरत है। तो ऐसी फसल जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी लगाया जा सकता है जी, जहाँ पे नमकियात का मसला है क्योंकि वहाँ फसलें होती नहीं जहाँ नमकियात का मसला हो। एग्जैक्टली, तो वो फिर ये नमकियात को खत्म कर देते हैं, क्या करते हैं? सर ये बेसिकली जिस तरह जंतर पहले हम काट करते थे फिर उसको रूटावेट करते थे, इसको भी इस तरह करते हैं? हमारे सर PhD स्टूडेंट ने जलालपुर पीर वाला फार्म पे इस पे काम किया है और उसमें वो भी आपका सारा ब्रैकिश एरिया था? जी वो ब्रैकिश एरिया था और वहाँ पे 9 ईस्की तक जो है ना जी जहाँ पे ऐसे एरिया था और दूसरी फसलें काटने से ग्वार के बड़े अच्छे रिजल्ट आए और हमने डिफरेंट जो उसकी वैरायटीज थी ग्वार की उनको हमने जो है वो टेस्ट किया और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट उसके मिले फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। अफताब साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, मनकेरा से आपका ताल्लुक है, वहाँ बहुत रकबे अभी भी गैर आबाद पड़े हैं, तो आप कैसे आबाद कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं, ज्वार बीन काश्त करते हैं या इसके अलावा और कुछ चाराजात करते हैं? आबाद किस तरह कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी की कमी है और रेतले इलाके सारे हैं। तो उसके पहले ग्वार बहुत अच्छा होता था, अब काफ़ी अरसे से जो है ना सीड अच्छा नहीं मिल रहा, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसकी वजह से ग्वार बीन जो है बहुत कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से फार्मर जो हैं वो भी परेशान है। अच्छा, ग्वार बीन के अलावा आपके पास क्या है ऑप्शन, क्या करते हैं? इसके अलावा कौन कौन सी चाराजात काश्त करते हैं? ग्वार बीन के बाद लहसुन होता है, उसके बाद ज्वार आ जाती है और यही 2 चीज़ें वहाँ चल रही हैं ज़्यादा ग्वार। इसके ग्वारे के अलावा सबसे अच्छा तो ग्वार था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, उसकी प्रोडक्शन नहीं आ रही, उसका सीड नहीं अच्छा मिल रहा, इस वजह से वो मसले बने हुए हैं। तो डॉक्टर लाल खान साहब, इनका मसला बड़ा पेचीदा है, सीड मिल ही नहीं रहा। मैं अर्ज करूं, ये इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है और उसकी एक वजह है। जो हमारा इदारा है इसका मैंडेट है नई वेराइटीज डेवलप करना और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना हम सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम
जितने भी फार्मर हमारे पास अप्रोच करते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। असल काम ये था कि इसका सीड पंजाब सीड कारपोरेशन मल्टीप्लाई करें, आप कहते हैं मल्टीप्लाई, आपके सीड, क्योंकि हमारा काम उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ना हमारे पास रिसोर्स है, सिर्फ वैरायटी देना है। हमारा काम है वैरायटी देना, और जितनी कैपेसिटी है उतना बीज भी हम प्रोड्यूस करके नहीं, आप पहले कहते हैं आपका जो फरूखाबाद का फार्म है वो सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, लेकिन फरूखाबाद सूटेबल नहीं है गुवार के लिए। ठीक है, ये इधर ही हो सकता है। ठीक है। पंजाब सीड कारपोरेशन का एक फार्म है पिपला में, मियांवाली के करीब। कहाँ है जी फार्म? पिपला मियांवाली से 30 किलोमीटर पहले। ठीक है। उनका मैंडेट था और वो प्रोड्यूस भी करते थे। ठीक है। मैं एक फिगर लिख के लाया हूँ कि इस वक्त पंजाब में कुछ 2.25 लाख एकड़ पर गवारा लगता है अब भी। अच्छा। और उसके लिए हमें कम अज कम 2000 टन सीड चाहिए। ठीक है। जो खालिद सीड हो, तकलीफ शुदा हो, जिस तरह आप कह रहे हैं, इनका जो गिला है या शिकवा है ये दूर हो सके। अब 2000 टन सीड मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1000 kg प्रोड्यूस कर लूंगा, 2000 kg। ये वाकई सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो पंजाब नहीं, तो आपने वो गवर्नमेंट को लिखा, पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब सीड कारपोरेशन को? मैं कई दफा गवर्नमेंट को ये कुछ मैं रीजन लिख के लाया हूँ कि क्यों इसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही। ठीक है। उसमें एक रीजन ये भी है, सीड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और तो काश्तकारों तक नहीं जा रहा। मैं वही कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए आपने तो पंजाब गवर्नमेंट को लिखा या फेडरल सीड आपका है उसको लिखा? हमने तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना जी, ये 3-4 साल 2-1 साल पहले तक हमने एक प्रोजेक्ट चलाया, इसमें ये भी मल्टीप्लाई करते रहे, हम भी करते रहे। उसका मकसद ही यही था कि जो इम्प्रूव वेराइटीज हैं उनका सीड प्री बेसिक बनाया जाए और वो दिया जाए सीड कारपोरेशन को, और वो मल्टीप्लाई करें और आगे फार्मर तक पहुंचाएं। तो हम हर साल जितनी क्वांटिटी स्पेसिफाई थी हमारे लिए उतना सीड हम प्रोड्यूस करके उनको हैंड ओवर करते रहे। ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। लेकिन उसके वो खातिर खास रिजल्ट नहीं आए जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए था, तो वो नहीं किया। नहीं, एक और तरीका भी हो सकता है। मैं अपने तौर पर बहुत कोशिश करता हूँ। ठीक है। कि नए फार्मर्स को उन वेराइटीज का बीज दिया जाए, और उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे फार्मर्स नहीं, अफ्तार साहब आपका जो था ना शिकवा, वो इन्होंने दूर कर दिया कि इनके पास तो खालिद वैरायटी मौजूद है, नई वैराइटीज मौजूद है, तो आप इनसे लेके खुद क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते? इन्होंने अब आके ना थोड़ा अवेयरनेस दी, मीडिया आया अब आके, नहीं तो पहले जो 20 साल पुराना सीड चल रहा था ना मार्केट में, वही फार्मर उसे काश करता था, वही थोड़ा बहुत जो निकलता था वही रख लेता था, फिर वही उसके ऊपर वायरस आना शुरू हो गया, वो कम हो गया, लोग लगाना ऐसा छोड़ गए। 3-4 साल से तो बिल्कुल ही कम कर गए। उसकी वजह यह है कि सीड मिलता नहीं है, वही सीड है, अगर मार्केट में जाओ तो आरती के पास पड़ा होता है, वो भी डैमेज सीड होता है, वो आरती गोदाम में रख देता है, वो उसे हीट हो जाता है। वो नहीं, आपको एक अच्छा सीड मिले, जैसे लाल खान साहब कह रहे हैं, डॉक्टर मुकर्रम साहब भी कह रहे हैं कि ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने तौर पे, तो आप खुद इनसे लेके बेसिक सीड लें और खुद इसको मल्टीप्लाई करें। नहीं, वो तो हम करेंगे, लेकिन वो हम जितना ये सीड कह रहे हैं इतने सीड से तो बहुत काफी अच्छा लग जाएगा। हमारे मनखेरा में पहले सारा होता ही ग्वार था। अच्छा। मतलब ये बहुत सारा एरिया ऐसा था जैसे वहाँ ग्वार ही ग्वार होता था, लेकिन अब वो कम होके खत्म होता जा रहा है। तो उसकी जगह पर कौन सी फसल आई है? उसकी जगह पे अब बाजरा आ गया है। अच्छा। जो बाकी है वो चने लगाते हैं, वो चने भी अब वायरस आना शुरू हो गया है, चने का भी काश्त नहीं होती, उसका सीड ही नहीं वापस आता। तो अगर आप जिस तरह आप कहते हैं कि आपके पास सारा वहाँ मनखेरा में लगता ही सारा गवारा था, तो गवारे के फी एक आप जब अच्छा सीड मिल जाए आपको, तो कितने का आप आमदनी उससे ले सकते हैं? वो तकरीबन 100 kg वाली 6 से 7 बोरी, उसकी आप ये लगा लें कि वो 25 से 30 हज़ार रुपया। अच्छा। इसके लिए आमदनी हम ले सकते हैं फी एकड़। और 25 से 30 हज़ार आमदनी होगी, आमदनी होगी। और इसका जो इसमें खर्चा शामिल है या खर्चा निकाल के? ये खर्चा निकाल के। अच्छा। तो इसका फायदा ये भी हो रहा है कि आमदनी भी हो रही है और रकबा आपका आबाद भी हो रहा है। हाँ, रकबा भी आबाद हो रहा है। मतलब उसके अलावा इसको जो हैं भेड़ बकरियां, उसके लिए बहुत अच्छा फायदा मंद है। अच्छा, लाइफ स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप
ये समझे कि जो सर्दियाँ होती हैं उसमें जितना ये लाइफ स्टॉक में यूज होता है ना, जितना उनको फायदामंद ये देता है ना, कोई और चीज नहीं देती। तो अब तो फिर लाइफ स्टॉक भी वहाँ खत्म हो गया होगा, क्योंकि वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे वो चीजें खत्म होती जा रही हैं पुरानी, वो लाइफ स्टॉक खत्म होता जा रहा है। मुकर्रम साहब, क्या हल है जिस तरह ये बता रहे हैं, किस तरह आप समझते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो बहुत सारे किसानों की मामलत कर रही है। प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी आफ्ताब साहब ने भी जिक्र किया और डॉक्टर लाल साहब ने भी जिक्र किया कि मार्केट में जो सीड अवेलेबल है वो मिक्सचर हो जाता है। हमारे यहाँ जो ब्रोकर हैं, हमारे यहाँ जो आड़ती साहिबान है, जो मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज, अगर कोई ग्रोअर अच्छा बीज एक वैरायटी को डेवलप भी करता है, उसे ग्रो करता है, तो वो उसे मिक्स कर देते हैं। और इसमें एक और जो हमने जब इसमें सर्वे किया और हमने जरा इस्माइल खान और फिर तक हमने जो है डिफरेंट मार्केट को जाकर हमने चेक किया, तो हमने देखा कि एक तो वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक वैरायटी का सीड नहीं है, मिक्स सिर्फ ग्वारे का सीड है, उसमें डिफरेंट वैरायटीज के सीड को मिक्स किया जाता है। और दूसरा इसमें जो एक और जो गलत हो रहा था वो ये था कि अच्छे क्वालिटी सीड को बैड क्वालिटी सीड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ऐसा सीड जिसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है, जिसकी हमने सही तरह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को नहीं जो है हैंडल किया, तो जब उसको मिक्स कर दिया जाता है तो वो भी एक बड़ी रीजन बनता है फार्मर की पैदावार कम आने में। और यूनिवर्सिटी ने जो इस पे हमने 3 साल इस पे ट्रायल्स किए और अभी भी हमारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, तो ग्वार की जो वैरायटी है जैसे BR 2017 है, इससे आप 30 से 35 मन पैदावार ले सकते हैं। फी मन की क्या है, कीमत क्या है? 2000 रुपया 1800 से लेके 2000 रुपया जो एवरेज सीड है उसकी कीमत है, और अगर आप अच्छी क्वालिटी का सीड देते हैं तो उसकी 2500 रुपए तक मन की कीमत है। अगर 35 मन होता है और 2500 कीमत है तो फिर तो बड़ी अच्छी आमदनी है किसान के लिए। जी, और इसी तरह उसमें यही है कि अगर हम थोड़ा सा इसकी एग्रोनॉमी, इसकी प्रोडक्शन एस्पेक्ट को और मजीद बेहतर कर लें, अगर साइंटिफिक बुनियादों पे ले जाएं, तो हम इससे अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं हमारी, और इसको ग्रो करने से हमारी जमीन की जरखेज़ी भी इंप्रूव होती है, वो भी जो है बेहतर होती है। और तीसरे नंबर पे ग्वार में जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हम सुनते थे हमारे बुजुर्गों से भी कि एज ए सब्जी के तौर पर इसको काश किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। और हम इंडिया के अंदर देख लें तो हमें बहुत ज्यादा एक पॉपुलेशन का बड़ा गैप है, यानी कि 70% हमारा जो राजस्थान का एरिया है इंडिया के अंदर, वहाँ पे ग्वार बीन काश्त होता है। और आप ये देखें कि इसको एज ए सब्जी जब वो काश्त करते हैं तो तकरीबन इससे 80 से 90 हज़ार रुपए एक एकड़ पे आप पैदावार ले सकते हैं, इनकम ले सकते हैं इसकी फलियों को। और इसकी जो फलियां नॉर्मल रूटीन के अंदर वो 80 से 90 रुपए जो है वो 1 किलो जो है मार्केट के अंदर सीजन में बिक रही होती है। तो अगर हम इसे 10 से 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद इससे जो है हम इसकी फलियों को उतार लें, तो ये मार्केट में हम जो है इसको दोबारा प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ जो हमने काम किया इसमें कि हमने इसके डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देखे, खासतौर पर ग्वार का अचार जो है बड़ा डिलीशियस और ये बड़ा मैदे के लिए दूध हजम है, और इसी तरह जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे इसमें जो है जो इसमें क्वालिटीज हैं, तो इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर जो है ग्वार को जो है चिकन के साथ भी बनाया जा सकता है, आलू को ग्वार के साथ ऐड करके सब्जी में बनाया जाता है, तो बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ होऊंगा, मुकर्रम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये सब्जी के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी बता रहे हैं। तो आप बताएं इसके क्या बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इसको वैल्यू एड कैसे किया जा सकता है, क्या क्या फायदे हैं, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। ऐड करना चाहता हूँ भाई, आफ्ताब साहब ने फरमाया ना लाइफ स्टॉक का, थ्रेशिंग के बाद जो तूड़ी इसकी बच जाती है ना, इनकी जुबान में उसको मिस्सा बोलते हैं, कुट्टल भी बोलते हैं। ठीक है। एक तो बीज से जो इनकम होती है वो तो होती है, जो तूड़ी है वो भी इतनी वैल्यूएबल है कि आजकल 600-700 रुपए मन के हिसाब से बिकती है। बिल्कुल ऐसे जैसे गंदम की तूड़ी बिकती है। हाँ, गंदम की तूड़ी का आपने जिक्र किया, वो तूड़ी ऐसी है जिसमें जीरो एनर्जी है, वो जस्ट बल्क बनाने के लिए तो कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। इसमें प्रोटीन है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें बहुत कुछ है, अमाइनो एसिड। ग्वार बीन का जो है जो कुट्टल जो है, अच्छा, ये इतना वैल्यूएबल है कि अभी थ्रेशिंग नहीं हुई होती, क्रॉप स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, और लोग उस मिस्से का या कुट्टल का या तूड़ी का पहले ही सौदा कर लेते हैं कि जी ये आप हमें फरोख्त करेंगे। और ये खुशाब साइड पर और सरगोदा साइड पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको पैकिंग करके मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो कुट्टल है बकरियों और ऊँटों के लिए बड़ी मरगूब ग़िज़ा है। ड्यूरिंग विंटर सीजन लोग फैटनिंग के लिए इसको बकरों को और जानवरों को खिलाते हैं, उनको मोटा ताज़ा करने के लिए। मीट प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। जो लैक्टेटिंग काउज हैं अगर उनको खिलाएं तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, जहाँ तक आपने बाई प्रोडक्ट्स जी बाई प्रोडक्ट्स की बात की ना जी,
अगर हम इसका सीड देखें ना तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका छिलका होता है, अंदर दूसरा पोर्शन उसका जर्म है और एक एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म से तो वो गुवार गम बनती है, मैं बाद में उसका जिक्र करता हूँ। जो जर्म और सीड कोट है, जो छिलका है, इसको अलग करके इसको ग्राइंड करते हैं, उससे गुवार मील बनता है। अच्छा ठीक। गुवार मील जो है ये कैटल फीड, फिश फीड और ये पोल्ट्री फीड, ये 3 इंडस्ट्रीज उसकी मेन कंज्यूमर हैं। अच्छा। यानी आप हैरान होंगे सुनकर के अगर 100 किलो बीज जा रहा है गुवारे का इंडस्ट्री के अंदर तो 100 किलो ही प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं। अच्छा। नो लॉसेस। और फिर गुवार की इंडस्ट्री ऐसी है जिसका 100% जो रॉ मटेरियल है वो भी पाकिस्तानी है और 100% एक्सपोर्टेबल है। बहुत अच्छा, वो जो मील है वो भी एक्सपोर्ट होता है और हमारी लोकल ये फीड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। जो तीसरा पोर्शन एंडोस्पर्म मैंने कहा, उसको फिर वो फ्लैकिंग करने के बाद ग्राइंड करते हैं, जिसको पाउडर आकर होता है, उसको कहते हैं गुवार गम। गुवार गम ये सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कराची बेस्ड है। जो मार्केट का प्रॉब्लम कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें यही है कि ये प्रोड्यूस तो हो रहा है, दोबारा होता होगा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, पंजाब से ज्यादा सिंध में होता है। पंजाब से ज्यादा जो थरपारकर का इलाका है ये सारा गुवारा होता है और उसका एरिया पंजाब से ज्यादा है। ठीक है। तकरीबन कोई 5 लाख एकड़ के करीब पाकिस्तान में होता है, तो 2 लाख तकरीबन पंजाब में, 3 लाख एकड़ सिंध में होता है। और सिंध में तो आप जाएं तो आपको हर वेजिटेबल शॉप पर इसकी फलियां मिल जाएंगी। ठीक है। बहुत ज्यादा पहले यहाँ पर भी हमारे अपने यहाँ जनूबी पंजाब में बहुत से यहाँ थोड़ा ट्रेंड कम हो गया। तो वो जो गम है ना सर, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि हमारी फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, पेपर, सीमेंट, पेंट, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, एक्सप्लोसिव्स, माइनिंग, टोबैको, नायाब चीज है। कॉस्मेटिक्स, आप नाम ले रहे हैं, ये कॉस्मेटिक्स का आप बता रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में बड़ी महंगी चीज है। और जितनी आपकी ये फार्मास्यूटिकल्स में जितनी आपकी लिक्विड फॉर्म में आ रही है ना दवाई, उसमें एज थिकनर इसको यूज करते हैं। अच्छा। और जितनी टैबलेट फॉर्म में आती है उसको बाइंड करने के लिए, टैबलेट फॉर्म में लाने के लिए इसको एज बाइंडर यूज करते हैं। अच्छा, इसकी गम को गुवार गम आप कहते हैं। गुवार गम है और ये बड़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और तकरीबन दुनिया के 65 ममालिक हैं जिनको हम ये गुवार गम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी हैं। तो एक्सपोर्ट करके हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और लोकल कंजम्पशन भी है जितनी ये इंडस्ट्रीज हैं। मैं एक फिक्रा आपको सुनाता हूँ जो किसी ने गूगल पर लिखा है इसके गुवार गम के मुतालिक, कि गुवार गम इज यूज्ड एवरीवेयर एंड इन एवरी प्रोडक्ट। तो आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी वैल्यूएबल हर प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रही है। और ख़ास तौर पर ये जो वेल डीलिंग है, हमारी जो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें हमारी आइसक्रीम्स हैं, पास्ताज हैं, हमारे बेवरेजेस हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, सब में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ख़वातीन ये अपने उसके लिए टोटके भी में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये कॉस्मेटिक्स का तो शायद ही कोई ऐसा आइटम हो जिसमें ये ना होता। अच्छा। तो हमारी जो आप इसकी वैल्यू बता रहे हैं तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ी कीमती चीज होनी चाहिए और काश्तकार को ज्यादा काश्त करनी चाहिए। काश्तकार तो बेचारे करते हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब ने मार्केट का एक इशू बताया ना कि प्रोड्यूसर बैठा हुआ है थाल के अंदर और थार के अंदर और इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ कराची में, ट्रेड कैसे हो रही है जो हमने बड़ी करीब से जाके कराची तक सर्वे करके देखा है कि यहाँ से जो ब्रोकर है वो ट्रक भर के भेजता है, इंडस्ट्री के अंदर एंटर होता है, वहाँ उसकी वो इवैल्यूएशन करते हैं कि जी इसमें इनर्ट मैटर कितना है, इसकी मॉइस्चर कितनी है, इसमें तिनके कितने हैं, इसमें सैंड कितनी है, मिट्टी कितनी है। उसके बाद वो एनालिसिस करने के बाद उन्हें कहते हैं जी इतने % इस पर रिडक्शन लगेगी और ये रेट देंगे। बारगम तो पाउडर फॉर्म में होता है ना, इससे पहले जो वो दाल की सूरत होती है ना वो भी एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। और
मैं कुछ अर्सा पहले कराची गया, वहाँ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डीजी से मैंने मिला। उनको मैंने ये कायल किया कि आप कराची इंडस्ट्री के बजाय ये इंडस्ट्री शिफ्ट करवाएं प्रोडक्शन जोन। तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा। ये कोई खैरपुर के करीब और भी हाल है साहब, जिस तरह आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, छोटे किसान की बात नहीं करते, छोटे किसान के पास इतने वसाइल नहीं होते, आप इसकी बेहतरीन मार्केटिंग कर सकते हैं। उनसे पहले बात करें कि हम आपको इतनी प्रोडक्शन देंगे, उनसे बात करें जिस तरह देखिए जितनी अब काश्तकारी हो रही है वो अब जदीद तरीकों से हो रही है कि आप पहले जाके बात करते हैं, फिर अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, उनसे पहले मुआहदे करते हैं। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कुछ ऐसा? नहीं, हम अब करना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर लाल साहब से भी रब्ता हुआ है, डॉक्टर मुकर्रम साहब से भी, इन्होंने हमें बताया अभी नई वैरायटियाँ आप लगाएं। डॉक्टर मुकर्रम मुझसे 2 साल पहले मेरे पास गए थे, तब भी कहते थे नई जो वैरायटियाँ हैं या आप खुद पहले ट्रायल करें, आप बड़े जिम्मेदार हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर आप लोगों को भी सीड दें ताकि लोग भी काश्त करें और इसकी प्रोडक्शन आप अपने सीड का काम करें। देखिए मेरी बात सुन, जिस तरह कपास के बहुत सारे फार्मर खुद सीड का कारोबार करते हैं। नहीं, वो तो हम अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा इसे सीड की प्रोडक्शन बढ़ा दे, मार्केटिंग कर दे, सीड कंपनियों को दे दे, तो उसमें थोड़ा और बेहतरी हो जाएगी। हर फार्मर लेगा, उसमें बहुत सारा आएगा। गवर्नमेंट इसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही, गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसमें नई वैरायटी जो भी आएंगी ना, अगर नई वैरायटी जो लगेंगी तो वो फायदेमंद होगी। हमारे पास तो चल रही है 20 साल पुरानी वैरायटी, वही उठाई, वही काश्त कर दी, उसमें फिर वायरस आ गया, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, कभी कोई आ गया, तो उस वजह से वो सीड भी वापस नहीं होता। तो अब लोग बहुत कम लगाते हैं, लोग मायूस हो रहे हैं। मुकर्रम साहब, आप इनकी मार्केटिंग के लिए कुछ इस तरह के इकदाम करें ताकि ये खुशी से ज्वार दिन काश्त करें, जो मायूसी फैल रही है वो खत्म हो। क्योंकि और दूसरा ये भी जरूर बताएं इसका पोटेंशियल कितना है, ये ना हो कि हमारी अगर इसको हम प्रमोट करें दूसरी फसलें मुतासर ना हो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो बेसिकली ज्वार बीन की जो प्रमोशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लिंकेजेस जो था ना उसको हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं, और हमने इसमें फार्मर्स के, इंडस्ट्री के लोगों के और जो सप्लाई चेन के आरटी और जो मिडल मैन के लोग हैं उनके हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप उसके बनाए हैं, और उसके अंदर जो है डिफरेंट जो इनोवेशन है, जो जितने इसमें हम वर्किंग कर रहे हैं उसको हम वहाँ पे उनके साथ शेयर करते हैं। मैं समझता हूँ कि ग्वार बीन इंडस्ट्री है, बेसिकली ग्वार बीन जो है एक इंडस्ट्री है, तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर इसमें अगर थोड़ी सी जो है इसमें मेहनत करें तो हम बहुत अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और सेकेंडली मैं यहाँ कहूँगा कि जो बिग प्रॉब्लम मैंने देखा मार्केटिंग के दौरान वो ये था कि जो ग्वार के मेन ब्रोकर हैं वो लोग हैं जो बहुत ही रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं और इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और अपने बेनिफिट के लिए, स्मॉल बेनिफिट्स के लिए हमारा बहुत सारा जो है नुकसान हो रहा है। जिसमें इंडस्ट्री के लोगों से जब हमने इसको डिस्कस किया तो वो ये कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो प्रोड्यूस आ रही है वो लो क्वालिटी की है, और लो क्वालिटी की वजह क्या है कि जो हमारा एक मिडिल मैन जो कि इतना एजुकेटेड, क्वालिटी आप बेहतर करें ना, आपका काम है इन लोगों की मामलत करें और क्वालिटी बेहतर करें। जी सर, उसमें हम जो है ना उसमें ये करने जा रहे हैं कि हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर जो है ग्वार की इंडस्ट्री के लोग, फार्मर्स, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स और हमारे रिसर्च के लोग और जो है हमारे मिडल मैन, उन सबको हम उसके अंदर शामिल करेंगे, और वहाँ पे जो है हम एक डायरेक्ट लिंकेजेस डेवलप करने जा रहे हैं बेसिकली बिटवीन इंडस्ट्री एंड फार्मर्स, ताकि जो है, और हमारा उसमें ये भी प्लान है और डॉक्टर लाल साहब के साथ मिलकर हम पोटेंशियल क्या है ग्वार बीन का? सर ग्वार बीन का जिसमें मैंने पोटेंशियल बताया कि जी इसमें आप 30 हमारे पास इस वक्त अच्छी अप्रूव वैरायटीज है ग्वार बीन की, इसमें 30 से 35 मंथ हम पैदावार ले सकते हैं हमारे पास फी एकड़ पैदावार। और अगर मैं कहता हूँ कि सिंपली 2000 रुपया भी इसका रेट हो तो आप ये देख सकते हैं कि हम जनरली हमने यूनिवर्सिटी में जो ट्रायल लगाए हैं भी हो तो 2000 रेट हो तो 60,000 60,000 पर ग्रेन की मद में। टोटल एक्सपेंस कितना है आपका? और इसमें सर एक्सपेंस टोटल 15 से 18,000 रुपये टोटल एक्सपेंस फी एकड़। और ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सिर्फ ग्रेन की पैदावार है। तो इसका भी डॉक्टर लाल साहब ने जिक्र किया और जिसमें आफ्ताब साहब ने बात की कि इसका जो इसका वेस्ट है, इसका जो स्ट्रॉ है वो भी इतना ही है, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही कीमती है जितना सीड की कीमत। तो फिर 1 लाख रुपए से ऊपर इसकी हो सकती है अगर प्रॉपर इसको किया जाए। जी बिल्कुल। तो इसका काश्त करना और फिर इसकी निगहदाश्त जिस तरह कपास है मुश्किल तो नहीं है? ये बहुत आसान है। इसको जो है खादों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बैग डीएपी की इसको जरूरत है। सिर्फ 10 किलोग्राम इसकी सीड की जरूरत है 1 एकड़ के लिए, और 120 रुपए किलोग्राम इसका सीड जो है हमारे रिसर्च के अदारे जिस हम बता रहे हैं वहां से अवेलेबल है, अच्छी वैरायटी इसका। और इसमें सिर्फ इसको 2 से 3 पानी चाहिए टोटल, और जो पेस्ट का अटैक है इसमें इतना खास नहीं आता, सिर्फ जो है
कुछ सब तेलने का थोड़ा प्रॉब्लम आता है या एक आध जो है इसमें बीमारी आती है, तो उसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट कर लें तो ये मसला हमारा सॉल्व हो मतलब ये तो बड़ा आसानी से काश हो सकता है। डॉक्टर लाल खान साहब, आपको याद होगा, मुझे याद अच्छी तरह, आप तो खैर खुद ये चीज देख रहे थे, कुछ अर्सा पहले अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो इसकी बड़ी मांग थी, बड़ी डिमांड थी। लोग अपनी फसलों के बाहर भी काश्त कर रहे थे, जहाँ कपास काश्त करते थे वहां भी लोग दोबारा काश्त कर रहे थे। उसकी क्या वजह थी? फिर एकदम खत्म क्यों हो गया? तो जो हमारी नई जनरेशन है उसमें नए ट्रेंड्स आ गए हैं, फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। तो हमारे बुजुर्ग तो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे अपने सब्जी के तौर पर, और जो बच जाता था उसको अपने जानवरों को भी खिलाते थे। अगरचे इसके चारे में थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये इतना पैलेटेबल नहीं है, जायका इसका अच्छा नहीं होता। इसके ऊपर ना हेयर्स होते हैं जिसको हमारी जुबान में कोत या कंड कहते हैं, जो चुभती है इस तरह के, तो उसकी वजह से जानवर इसको लाइक नहीं करते थे। तो उसका इलाज ये था कि फिर इसको ज्वार या मकई के साथ मिक्स चॉपिंग करके खिलाते थे। इस सिलसिले में मैं एक खुशखबरी अपनी कौम को भी देना चाहता हूँ, आप दोस्तों के भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। डॉक्टर साहब तो जानते हैं, बड़ी तरह हमारे साथ अटैच रहते हैं। हमने अभी 2021 में एक नई वैरायटी अप्रूव करवाई है गुब्बारे की, जिस पर कोत या कंड नहीं है। अच्छा, तो बड़ा लगे ठीक है। हमने 20 एकड़ पे है जी अपने इसकी फार्म पे इस को कल्टीवेट किया, जलालपुर फिर। अच्छा, तो वो चूंकि इसी साल आई है, उसका बीज बहुत थोड़ा सा था हमारे पास, तो जिन को हम दे सके थोड़ा बहुत नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है हमारे इदारे की तरफ से, क्योंकि उस कोत या कंड की वजह से समझ कम हमारा लाइफ स्टाइल में इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि जो हार्वेस्ट करने वाले लोग थे ना, मजदूर जो इसको काटते थे, वो भाग जाते थे या डिमांड ज्यादा करते थे कि जी हमें 500 की बजाय 1000 या 2000 रुपये दें, तो कोत लड़ दिए जी फलां। तो अब वो मसला भी इस वैरायटी की वजह से हल हो जाएगा। ठीक है। एक बात कीमत की हुई थी, मैं समझता हूँ जैसे बाकी क्रॉस में प्रॉब्लम्स हैं, आज तक मेरे इल्म के मुताबिक गवर्नमेंट ने कभी इसकी सपोर्ट प्राइस नहीं फिक्स की। ठीक है। जो अलमिया है हमारे लिए। मजे की बात यह है कि कितने मुल्क हमसे ये इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सपोर्ट प्राइस बिल्कुल नहीं है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी मर्जी से मोनोपलाइज करके काश्तकार से लेता है, वो बेचारे को मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से भी, आपकी वसात से, इसकी सपोर्ट प्राइस तकरीबन गवर्नमेंट को तकरीबन हर फसल का किसान को श्योरिटी देनी चाहिए कि आपकी फसल ली जाए। लेकिन मेरा आपसे सवाल हुई है कि 4-5 साल पीछे हम चले जाएं, तो इतनी डिमांड थी, लोग कपास छोड़ के ज्वार बीन काश्त कर रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया ना जी कि इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है। एक है प्रोसेस हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है, यानी ऑयल एंड गैस की तलाश के लिए कुएं खोदते हैं। उसमें जो मशीनरी यूज होती है, वो लोहे की मशीनरी है, जब वो ऑपरेट कर रही होती है तो उसमें आग लगने का खतरा होता है फ्रिक्शन की वजह से ना। तो चूंकि 2010-11 और 11-12 2 साल ऐसे थे जब ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऑयल गैस की जो ड्रिलिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से इतना गुब्बारा इंपोर्ट किया कि यहाँ गांव की सतह पर लोग स्पीकर लगाकर मोटरसाइकिलों पर उसका सीड खरीद रहे थे। बिल्कुल, और वो एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बहुत हाई चली गई। और इस प्रोसेस में कोई थोड़ा सा पाउडर नहीं यूज होता, टनों के हिसाब से होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी प्राइसेस 30-40 हज़ार मन तक चली गई। लेकिन जो ही ऑयल की प्राइसेस डाउन हुई तो वो प्रोसेस रुक गया। ये नेट पर कोई भी सर्च करे तो आपको गूगल पर भी ये रीजन मिल जाएगी, इसकी वजह से उसकी। तो ऑयल की प्राइसेस लो होने की वजह से वो प्रोसेस रुकने की वजह से डिमांड में कमी आ गई, इसलिए वो प्राइसेस फिर वही 2000, 1500 और 2500 पर आ गई। अच्छा, तो डिमांड होगी। आप बता रहे थे 20 एकड़ आपने लगाए हुए, तो उसकी क्या देखभाल निगहदाश्त किस तरह करते हैं, उसकी काश्त किस तरह करते हैं? हमने खेलियों पे इसकी काश्त की है, और जो है इसमें 10 किलोग्राम जो है वो सीड रेट इसमें हमने रखा है 1 एकड़ का।
और 1 बैग DAP का जो है बुआई से पहले ज़मीन के अंदर हमने इसमें ऐड किया, और उसके बाद जो है जिस वक्त इस पर फूल आने लगेगा उस वक्त हम जो है इसमें आधा बैग जो है यूरिया का अगेन इसमें ऐड करेंगे, और तकरीबन 3 से 4 पानी जो है टोटल इसको चाहिए, और ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह जो है हम 25 से 30 मन पैदावार जो है सीड की इंशाल्लाह इस साल से एक्सप्लेन। अच्छा, आफ्ताब साहब आप बताएंगे कि आपको इदारे किस तरह सपोर्ट करें ताकि आपकी काश्त बेहतर हो सके, पैदावार में इजाफा हो सके? गवर्नमेंट को चाहिए कि अदारा जो है ना वो सबसे पहले जो सीड का काम है ना वो सीड प्रोवाइड करे। ठीक है, अच्छा सीड होगा, बेस्ट क्वालिटी का सीड देंगे, वैरायटी होगी, तो वो फिर काश्त होगी, उसकी प्रोटेक्शन आएगी, तो लोग खुद ब खुद काश्त करना शुरू हो जाएंगे। वार की जगह मनकेरा में लगना बाजरा शुरू हो गया, लेकिन बाजरा जो है ना जमीन को खराब कर रहा है। अच्छा, बाजरे से जमीन खराब होती है, इससे तो जमीन जरखेज होती है। इससे जमीन जरखेज होती है, जमीन की जरखेजी बढ़ती है, जरखेजी बढ़ती है। जो भी गैरबाज जमीनें हैं वहाँ अगर ये गुआर लगे, आप समझते हैं कि आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो सीड है। हाँ, सीड बाकी है। आप खुद कर लेंगे, उसकी पैदावार इजाफा भी, हाँ। मार्केटिंग भी, सीड बेहतर आपको मिलना सीड चाहिए। बेहतर हो, वैरायटी अच्छी हो, वो लाल खान प्रोटेक्शन दे। साहब आप क्या मशवरा देंगे? इसकी प्रोडक्शन लो हो, उसकी पहली रीजन है कि ये एक माइनर क्रॉप समझी जाती है, इग्नोर्ड फसल है, इसको फोकस किया जाए। फोकस किया जाए। दूसरा ये कि फार्मर्स जितने मेरे पास आते हैं या हम मिलते हैं, मैं उनको 10 मिनट 15 मिनट तकरीर करता हूँ जी कि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये है, यूं काश्त करें, ये खाद डालें, फलां करें, लाइनों में काश्त करें। एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे कहते हैं जी ना हमारे पास ड्रिल है, हम तो छट्टा देंगे। छट्टा जो है कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है साइंस का ना, उससे अच्छी फसल आ ही नहीं सकती। एक तो मेरी सुजेशन फार्मर्स के लिए है कि वो इसको ड्रिल किया जाए। हाँ, हमारे पास ब्रोशर है, कोई भी हमें कहते हैं, हम वैसे तकसीम भी करते हैं फार्मर्स को, किसी का फोन आए तो मैं व्हाट्सअप भी कर देता हूँ, उस पर हमने पूरी टेक्नोलॉजी दी हुई है। ठीक है, ताकि किसान ए को टू आसानी जेड, हो। हाँ जी, वो उसको पढ़ें, उसके मुताबिक करें। दूसरा ये है कि जो ओल्ड वेराइटीज हैं उनका पोटेंशियल कोई नहीं है, उनको छोड़ दें, उनको छोड़ें, ये हमें अप्रोच करें। मैं तो 24 घंटे अपना मोबाइल ऑन रखता हूँ, रात को भी बंद नहीं करता। अच्छा, किसी का फोन आ जाए, अननोन भी हो, तो मैं उसको अटेंड करता हूँ। ठीक है, गवारे की मुझे एक समझे कि पैशन है मेरा कि फार्मर को कोई भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। एक मेरी सुजेशन है कि फार्मर अच्छा बीज तलाश करे और उसकी एक अगर अच्छा बीज तलाश नहीं कर सकता तो आपसे रब्ता करे। दूसरा ये कि जिन दोस्तों को हम बीज देते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो सारे सुन रहे हैं, इस दफा मैंने वो लिस्ट भी डॉक्टर साहब से भी शेयर की है जिनको हमने अच्छा बीज दिया है, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब उसको हार्वेस्ट करें, आपके पास बीज आ जाए तो आप उसे मार्केट में ना सेल करें, आप अपने पास रखें, हमसे रब्ता करें। जो फार्मर हमसे रब्ता करते हैं हम आपकी तरफ रेफर करें, ताकि कीमत भी मिलेगी कीमत और आपको आगे घर से ले जाएंगे, और जाना भी नहीं पड़ेगा, स्प्रेड भी होगा। तो जाहिर है ऐसे ऐसे स्प्रेड होगा, उसे 2-4 साल 5 साल लगेंगे सारे फार्मर तक जाते हुए ना। लेकिन जिन फार्मर के से मैं रब्ता करता हूँ कहते हैं हमने तो बेच दिया, किसान के इस्तेमाल करते हैं उससे भी बच जाएंगे। और ये क्रॉप ऐसी है कि आपको हर साल नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर इस साल आपने मुझसे लिया है तो आप अगले 5 साल 10 साल उसको अच्छा, कोई मसला ही नहीं है ना, उसके पोटेंशियल में कोई कमी आती है, उसी को मल्टीप्लाई करने कोई नहीं। हाँ, अपना बीज रखें, कपास का बीज है ये भी अब ना करें, एक दफा हो गया जी, नई वैरायटी करें, अपना बीज यही रखें, जितने साल मर्जी चलाएं। अच्छा, कोई मसला भी नहीं है। तो ये तो बड़ा आसान काम है आफ्ताब आलम साहब, ये तो बड़ी अहम बात है कि आप इनसे लें और फिर अगले 5-10 साल उसी को ही काश्त करते रहे। हम सीड की क्वालिटी के लिए इसमें बात करें, सर ने भी बात की कि हम एक दफा अच्छी क्वालिटी का सीड ले लें, तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हर्मेटिक बैग कहते हैं। हमारे पास जो है वो एक 40 से 50 रुपए का एक बैग अवेलेबल है। अगर आप उसके अंदर अपनी जो है वो स्टोर प्रोड्यूस जो है उसको सीड को स्टोर करें तो उससे उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी और गुड क्वालिटी सीड आपके पास जो है ना वो रहेगा। आप किसी को देना भी चाहते हैं तो आप 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि ये जो सीड है, तो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ने हर्मेटिक बैग भी फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि अगर इस साल जो अपनी प्रोड्यूस उनकी आती है उसको एक बैग के अंदर जो है उसको पैकिंग करें ताकि अगले साल उनके पास एक अच्छी क्वालिटी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब लाल हुसैन आपका बहुत शुक्रिया, आफ्ताब साहब आपका
का शुक्रिया। नाजरीन, आज माहरीन ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की और खसूसन गवार बीन पर बड़ी अच्छी बात की। गवार बीन एक ऐसी चीज़ है जो 100% एक्सपोर्टेबल है, जिससे हमारी मईशत को भी बड़ा फायदा हो सकता है। और जिस तरह डॉक्टर लाल खान साहब ने ये भी बात की कि इसके जो प्रोड्यूस करते हैं हम, वो भी हमारी लोकल है। तो यकीनन हमारे जो वो काश्तकार जो ऐसे इलाकों में बैठे हैं जो इस फसल को बासानी काश्त कर सकते हैं, तो वो डॉक्टर लाल खान साहब से रब्ता करें और इससे जो खालिस सीड है वो लेकर काश्त करें, अपना भी मुनाफा हासिल करें और साथ साथ इस मुल्क की मईशत में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।